Hello everyone, my name is Dr. Aditya Gupta. So let's come to the almost the end of this chapter, that is the body fluids and circulation, and we'll talk about the diseases which affect the cardiovascular system or the circulatory system. The first disease that I'm going to talk about is the hypertension. So we all know that a normal blood pressure is 120 on 80. This is expressed in which? This is the millimeters of mercury. Remember this measurement. They can even give you example of 120 by 80 centimeter of water. That won't be true. That's an example. So remember, it is 120 on 80 millimeter of mercury, where 120 is the systolic pressure, यानी जब हार्ट पंप करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है उस समय प्रेशर, एंड 80 इज अ डायस्टोलिक प्रेशर. व्हेन दैट इज व्हेन द हार्ट इज इन अ रिलैक्स स्टेट, तब बॉडी में प्रेशर कितना होता है. अगर बार बार हमारा ब्लड प्रेशर, रिपीटेड मेजरमेंट्स ऑफ ब्लड प्रेशर आर मोर देन 140 and 90, then it's called as hypertension. And this hypertension can affect brain, heart and kidney. These are the three organs that can get affected by hypertension, which you should remember. How do you get affected by hypertension, you might ask? So basically क्या होगा, अगर hypertension होगी, बॉडी का ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगा, the heart will have to pump against a higher pressure. Now if the heart has to pump against the higher pressure, heart will tend to fail. उसमें hypertrophic changes आने लग जाएंगे. Second, अगर heart has to pump against a higher pressure, so the blood flow to the brain and the kidney will get affected, because probably after a point of time heart won't be able to pump with that much pressure, and that's why these hypertension tends to affect every organ of the body, more importantly heart, brain and kidney. The next thing is the atherosclerosis. Atherosclerosis is basically nothing but हमारी जो coronary arteries हैं, coronary artery disease जिसको कहते हैं, coronary arteries क्या थी? They were the arteries which supply the blood to the heart muscle itself. They get narrowed, and they get narrowed why? Because हमारे यहाँ पे उनके vessels में, coronary artery के vessels में, there's a formation of a lump, formation of this thing made up of cholesterol, calcium, fat and fibrous tissue. तो blood flow जो होगा वो थोड़ा कम हो जाएगा, and इसकी वजह से क्या होता है? इसकी वजह से होता है angina pectoris. जब ये ब्लड फ्लो कम हो जाएगा तो हार्ट मसल को ऑक्सीजन कम मिलेगा, एंड दिस विल कॉज पेन. दिस विल कॉज पेन इन द चेस्ट रीजन. दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एंजाइना पेक्टोरिस, बिकॉज पेक्टोरिस का मतलब होता है पेक्टोरल. ये एरिया जो यहाँ पर होता है इसको पेक्टोरल मसल कह रहे होते हैं, एंड दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एंजाइना पेक्टोरिस. फाइनली विल कम टू द मोस्ट एक्सट्रीम पार्ट ऑफ एंजाइना पेक्टोरिस, दैट इज हार्ट अटैक. मान लो ये जो ऑक्लूजन थी ये पूरी की पूरी हो जाए, तो हार्ट मसल को बिल्कुल ही ब्लड नहीं मिलेगा, तो हार्ट मसल विल डाई. दिस डेथ ऑफ सडन डेथ ऑफ हार्ट मसल इज कॉल्ड एज हार्ट अटैक. बट वी हैव टू डिफरेंशिएट हार्ट अटैक फ्रॉम टू कॉमन कंडीशंस विच आर सिमिलर. नाम लगते हैं, कॉमन पब्लिक माइट थिंक दे आर सिमिलर, बट दे आर नॉट. वन इज द कार्डियक अरेस्ट. कार्डियक अरेस्ट का मतलब क्या है कि सडनली हार्ट ने बीट करना ही बंद कर दिया. Okay, so heart attack will happen. So a part of the muscle won't get blood. Obviously this will be a medical emergency, and sooner or later you have to intervene, otherwise that person can die. बट कार्डियक अरेस्ट में क्या होगा? अचानक ही हार्ट ने बंद कर दिया बीट करना. कॉजेज कैन बी मल्टीपल. इलेक्ट्रोलाइट एबनॉर्मलिटीज़ हो सकती हैं, इलेक्ट्रिकल एबनॉर्मलिटीज़ हो सकती हैं. हार्ट अटैक थोड़े टाइम में कार्डियक अरेस्ट में ट्रांसफॉर्म हो सकता है, बट इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम हार्ट अटैक. लास्ट इज हार्ट फेलियर. हार्ट फेलियर का मतलब ये नहीं है कि ये मसल जो है उसकी डेथ हुई है. हार्ट फेलियर का मतलब ये है कि जो हार्ट हमारा जिसको जिस तरीके से पंप करना चाहिए, इट इज़ नॉट पंपिंग इन अ मैनर कि बॉडी की, किसकी, बॉडी की ऑक्सीजन डिमांड जो हैं वो पूरी हों. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज कंजेस्टिव हार्ट फेलियर. कंजेस्टिव हार्ट फेलियर क्यों बोल रहे होते हैं इसको? देखो, अगर हार्ट पंप नहीं करेगा, इफ़ इट वोंट पंप, तो हार्ट इज़ कनेक्टेड टू व्हाट? इट्स कनेक्टेड टू लंग्स. तो हार्ट का जो ब्लड है ना, इट विल टेंड टू स्टे बैक इन लंग्स, बिकॉज लंग से ब्लड आ रहा था लेफ्ट वेंट्रिकल में. अगर हार्ट ढंग से पंप नहीं करेगा तो लंग का जो ब्लड है हार्ट में नहीं आ पाएगा, क्योंकि वहाँ पे हार्ट में ऑलरेडी वो पड़ा रहेगा, तो थोड़ा बैक फ्लो की वजह से वो लंग में पड़ा रहेगा. इफ इट गोज इन टू लंग, इट स्टेज इन द लंग, सो इट विल कॉज कंजेशन इन द लंग, एंड दिस कंजेशन इज कॉल्ड एज द रीजन इट्स कॉल्ड एज कंजेस्टिव हार्ट फेलियर. नाउ लेट्स सी एनसीईआरटी में क्या क्या दिया हुआ है. सो हाई ब्लड प्रेशर इज द टर्म यूज फॉर ब्लड प्रेशर दैट इज हायर देन नॉर्मल. तो नॉर्मल कितना होता है? 120/80 होता है. अगर बार बार 140 और 90 से ज़्यादा है तो इसको हाइपरटेंशन कहते हैं, एंड इसकी वजह से कौन से ऑर्गन इफेक्ट होते हैं? इट कैन कॉज हार्ट डिजीजेज एंड ब्रेन एंड किडनी. ठीक है. देन वी कम टू अथेरोस्क्लेरोसिस, दैट इज द कोरोनरी आर्टरी डिजीज. व्हाट हैपेंस इज इट अफेक्ट्स द वेसल्स दैट सप्लाई ब्लड टू द हार्ट. कोरोनरी आर्टरीज आर दैट ओनली, एंड व्हाट इज कॉज कि वहाँ पे डिपॉजिट्स हो जाते हैं किसके? कैल्शियम, फैट, कोलेस्ट्रॉल एंड फाइब्रस टिश्यू. ये चार चीज़ें याद रखना. द डिपॉजिट्स इन द कोरोनरी आर्टरी डिजीज आर मेड अप ऑफ कैल्शियम, फैट, cholesterol and fibrous tissue. They can easily ask you which of the following does not make up the deposits. Calcium, fat, fibrous tissue, sodium.
नहीं आंसर, है ना. पोटाशियम नहीं आंसर. यहाँ पे फैट और कोलेस्ट्रॉल लिखा हुआ है, कार्बोहाइड्रेट लिख देंगे, नहीं है आंसर. ठीक है. सो दैट्स हाउ दे कैन फ्रेम क्वेश्चंस विच मेक्स द आर्टरीज नारोअर. अब इस आर्टरी नारोअर होने से क्या होगा, एंजाइना होगा. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एंजाइना पेक्टोरस. पेक्टोरस क्यों कहते हैं कि चेस्ट में, चेस्ट इज बेसिकली ये वाला एरिया को पेक्टोरल कहते हैं. पेक्टोरल रीजन होता है, यहाँ पे पेक्टोरल मसल्स होते हैं. दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एंजाइना पेक्टोरस. Symptoms of acute chest pain which appear when there is not enough blood reaching the heart muscle. क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि वहाँ पे ल्यूमन थिन हो चुका है, वहाँ पे कोरोनरी आर्टरी डिजीज हो चुकी है. इट कैन अकर इन एनी एज. यहाँ पे लिखा हुआ है इट कैन अकर in women of men and women of any age. So remember this, they can ask you it can occur in women and men of only elderly. नहीं, it can occur in any age. किसी में भी हो सकता है, पर ज़्यादा कॉमन किस में होता है, मिडिल एज एंड एल्डरली में ज़्यादा कॉमन होता है. मतलब यंगर में कम होगा, मिडिल एज और एल्डरली में होकर ज़्यादा होगा. बट दे कैन ईजिली फ्रेम अ ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चन फ्रॉम दिस. इट कैन अकर इन मेन एंड एज वुमेन ऑफ ओनली मिडिल एज एंड एल्डरली. नहीं, इट कैन अकर इन एनी एज. इट इज अकर्स ड्यू टू कंडीशन दैट अफेक्ट द ब्लड फ्लो. कौन सी है वो, कोरोनरी आर्टरी डिजीज जो पहले तुम्हें पढ़ाई थी. लास्ट दे कम टू हार्ट फेलियर. हार्ट फेलियर मीन्स द स्टेट ऑफ हार्ट इज नॉट, व्हेन हार्ट इज नॉट पंपिंग टू मीट द डिमांड्स ऑफ द बॉडी, टू मीट द नीड्स ऑफ द बॉडी. इट इज कॉल्ड कंजेस्टिव हार्ट फेलियर बिकॉज कंजेशन ऑफ लंग्स इज मेन सिम्टम. मैंने बताया ना, अगर हार्ट ढंग से पंप नहीं कर रहा तो बैक फ्लो की वजह से लंग्स में सारा ब्लड रह जाएगा, तो लंग्स में कंजेशन हो जाएगी, एंड दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड कंजेस्टिव हार्ट फेलियर. एंड कंजेशन ऑफ लंग्स इज वन ऑफ द मेन सिम्टम्स. एंड हार्ट फेलियर नीड्स टू बी डिफरेंशिएटेड फ्रॉम हार्ट अटैक व्हेन हार्ट मसल इज सडनली डैमेज बाय इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई. कैसे सडनली कैसे डैमेज होगी, क्योंकि वो मैंने बताया ना, पूरा का पूरा ल्यूमेन ही दब जाएगा. वर्सेस कार्डियक अरेस्ट व्हेन हार्ट विल सडनली स्टॉप बीटिंग. So this has been asked multiple times in your examination. Remember these terms. Remember the difference between heart attack, heart failure and cardiac arrest. Okay? I know I haven't covered two things. I haven't covered lymph and I haven't covered the autonomic regulation of heart. I want you to read this on your own. They're very small topics. But we have covered the circulatory system, mota sa. And now we'll move on to the next chapter, which I will ask in a poll. You will let me know which chapter should I consider going for next in the Human Physiology series. Thank you and have a nice day.